Good evening, all of you. Good evening, sir. Now we can start. Due to electricity failure, today's class delayed. Okay, no problem. Now we can start. Yesterday we discussed about the what is the meaning of political science and what is the meaning of politics. I think you all will all appeared very good in quiz. I think everyone this quiz also help in your examination. That's why try to solve the problem, and whatever the mistakes would have been done by you should see correctly what is the correct answer and then remember it. This will definitely help you in the examination. Okay. ये आपको एग्जामिनेशन में ये क्विज बहुत काम में आने वाली है. आज की जो क्विज रहेंगी थोड़ा मैं रात को डालूंगा लेट, क्योंकि मेरी हुआ नहीं है वो फॉर्मेट. वो हो जाएगा, रात को डालूंगा. तो नाउ वी कैन स्टार्ट. Man is by nature a political animal. Aristotle said that he is a political animal. He also said that he is a social animal. मीन्स ने एरिस्टोटल ने जो कहा है कि ये एक राजकीय प्राणी है मनुष्य और एक सामाजिक प्राणी है. इसका अर्थ ये होता है कि मैन could not be live without society, without state, because his development is depended upon the society, the structure of society, the atmosphere of the society, the structure of the nation, the structure of the state, and atmosphere of the state. That's why he said that man could not live without society, without political system. Today, we are discuss about the power. What is the meaning of power? ताकत. I think we discuss it in our class and also discuss the kinds of power. Why I included this concept also in this course? Because the political science or politics, we cannot imagine without this concept, because everyone wants to acquire the power, and this is the main object of everyone who live in the society or he live in the political structure. That's why I included this concept in this course. Power means kya? Power means if one person control the behavior of another person without his or her will, and that person bound to obey the order, whatever the order given by that powerful person. पावर का मीनिंग क्या है? मेन कि कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन. यानी मैं यदि आपका बिहेवियर कंट्रोल करता हूं, लेकिन उसके पीछे यदि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका यदि बिहेवियर
कंट्रोल होता है मेरे से, तो डेफिनेटली आई एम मोर पावरफुल देन यू। और इसलिए पावर का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। पावर के बहुत सारे काइंड्स भी अपन देखने वाले हैं अभी, कि क्या है पावर, यानी क्या। इवन बहुत सारे थिंकर्स ने तो ऐसा बोला है कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? द पॉलिटिकल साइंस मीन्स अ पावर पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल साइंस कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। यहाँ पे आपको पावर एक्वायरिंग का ही कंपटीशन दिखेगी, कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, और हर एक जन उस दौड़ में शामिल हो रहा है।
क्या हुआ, क्या था सब इतने? विश्वजीत, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था? सर वो आप गायब हो गए थे तो आप गायब हो गए तो सब गायब हो गए थे। ऐसा मेरा तो चालू है बराबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिखा मुझे कुछ। सर आपकी स्क्रीन पूरी डिसेबल हो गई थी, आ ही नहीं रही थी स्क्रीन कब पे। कब स्टार्टिंग से नहीं आ रही थी कि अभी अभी कुछ हुआ? नहीं सर, वो एक दो स्लाइड आए थे उसके बाद से आना ही बंद हो गए थे। हाँ क्या? तो लेकिन मेरे को अभी अभी अभिषेक का मेरे को कॉल आया, तब मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए अभिषेक ने फोन किया होगा। अच्छा। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? हाँ सर, अभी आ रही है। सर हुआ क्या था तो आप दिख नहीं रहे थे ना। चलो अगेन वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ पावर. Power is the ability to influence an outcome, to achieve an objective, or the ability to influence someone to act in a way contrary to the way he or she would choose to act. ये पावर की ये एक डेफिनेशन है कि पावर यानी क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर. कि पावर मीन्स टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ अनदर पर्सन, टू कंट्रोल. किसका किसका ये चालू है? म्यूट करो बोलना. What is the meaning of power? तो पावर यानी टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन. ये एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें. एट द सेम टाइम वॉट एवर योर ऑब्जेक्टिव you decided, you have an ability to achieve that objective. वो एबिलिटी आप में होनी चाहिए, तो इसी को पावर कहते हैं. इसलिए मैंने जब भी, मुझे पता नहीं था कि ये सब डिस्टर्ब हुआ करके. अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ यूएस. ये जो यूएसए जो है, इसको अपन पावरफुल नेशन, व्हाई वी से दैट इट इज अ पावरफुल नेशन. तो यूएस हैज द पावर टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अनदर नेशन. कौन से, बाय वे, विच वे, वी विल डिस्कस आफ्टर दैट. बट it has the power to control the behavior or control the action of another nation. That's why we say that USA is a powerful nation. After the Second World War, bipolar politics we had seen, but now world world is now living in unipolar. पहले सोवियत रशिया और यूएस था, अभी सिर्फ यूएस ही है, इसलिए उसको यूनिपोलर कहा जाता है. तो यूनिपोलर क्यों कह रहे अपन आज भी? क्योंकि आज भी यूएस ये पावरफुल कंट्री है. ऐसा नहीं कि यूएस पावरफुल कंट्री नहीं है. इसलिए यूएन में भी देखो आप, यूएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, और इसलिए यूएन भी अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द यूएस एक्ट करते हुए अपने को बहुत बार दिखाई पड़ती है. तो इसी को पावर कहा जाता है. कि कभी कभी यूएन को लगता नहीं कि हम ऐसे बिहेव करना चाहिए, हमने ये एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन यूएन को भी वो करना पड़ता है. यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन को भी ये करना पड़ता है. व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ द यूएस हैज द पावर टू चेंज द डिसीजन
ऑफ यूनाइटेड नेशन। अपन भी बहुत बार अपनी एक्शन चेंज होती है। यदि आप बराबर इंट्रोस्पेक्ट करोगे खुद को तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि हाँ, आई डोंट वांट टू एक्ट, बट नाउ I am acting. Why? Because of the force, because of the fear, because of the phobia in the mind of our about the another person. तो इसीलिए उसको पावर कहा जाता है। पावर में आपको और क्या क्या दिखाई पड़ता है? पावर इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ वायलेशन। Power over someone else involves altering his or her volition, means will। यहाँ पे भी सॉरी वायलेशन नहीं है, वो वॉल्यूशन है, विल। और लास्ट में भी पावर कैन बी लेटेंट और मैनिफेस्ट। ये जो है पावर में विल इन्वॉल्व रहता है। पावर में आपको ये दिखेगा कि हैज द ability to change the behavior of another person। ये जो पावरफुल पर्सन की जो विल है उससे चेंज होता है किसमें? अनदर पर्सन के एक्शन में वो। और लास्ट में वो अपन यहाँ पे दिख रहे हैं कि पावर कैन बी लेटेंट और मैनिफेस्ट। वो छुपा हुआ भी रह सकता है और वो उसका आपको क्लियर पिक्चर सामने में दिखाई भी पड़ सकता है। बट ये देखो, ये सब कंसेप्ट जो है ये अपने को खुद की अनुभूति पर के ऊपर अवलंबन रहती है सब। इफ यू फील देन यू डेफिनेटली एक्सप्लेन इट, इफ यू डोंट फील यू कैनॉट एक्सप्लेन। अपन जब क्लास में अपन जब डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट के बारे में, मैंने आपको आपके घर के बारे में भी ये एग्जांपल्स दिए थे। यदि आप सही में वो एग्जांपल्स प्रॉपर आप आंख खुली रख के यदि देखोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ मैं भी वैसे बहुत बार मेरी एक्शंस जो है वो कंट्रोल होती है। तो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पावर। कि क्या है टाइप्स ऑफ पावर्स में आपको क्या पर्टिकुलर देखना भी क्या क्या है। फोर्स बोलो, परसुएशन बोलो। फोर्स में आपको फिजिकल फोर्स पर्टिकुलर दिखेगा। परसुएशन ये फिजिकल नहीं है, लेकिन विदाउट परसुएशन आपका इन्फ्लुएंस बोलो या आपका जो पावर है उसकी जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो अनदर पर्सन को जो फीलिंग आनी चाहिए वो फीलिंग नहीं आ सकती। इसलिए परसुएशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पावर में। तो ये फोर्स इज पावर इन्वॉल्विंग फिजिकल मीन्स, और परसुएशन इज नॉन फिजिकल पावर इन विच द एजेंट यूजिंग पावर मेक्स इट्स यूज ऑफ पावर क्लियर एंड नोन टू द एजेंट ओवर हुम पावर इज एक्सरसाइज। ये परसुएशन वही कर सकता है कि जिसको ये पता है कि वो क्या है, उसके हाथ में क्या क्या इच्छा है और वो कैसा उसको कंट्रोल कर सकता है। तो उसकी फीलिंग और उसका जो एक अपन बोलते हैं ना कि नहीं यार, ये उसको पता है अपना उसकी कैपेसिटी क्या है। तो ये कैपेसिटी जिसको पता रहती है, दैट पर्टिकुलर पर्सन exercise his power over that particular another person behavior बोलो या एक्शन बोलो। उसके बाद मैनिपुलेशन इज नॉन फिजिकल पावर इन विच द एजेंट यूजिंग पावर कंसील्स द यूज ऑफ पावर। ये मैनिपुलेशन ये वर्ड तो अपन बहुत बार अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। he can manipulate anything, means he can achieve that particular object whatever he decided, and for that he can do anything। इसी को मैनिपुलेशन कहते हैं।
कि जो चीज नहीं होने वाली है बट वो चीज हो जाती है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन मैनेज so many things. और इसलिए वो अपने को दिखाई पड़ता है कि नहीं, कि मैनिपुलेशन यानी अपन जिसको बोलते हैं जुगाड़ करना, जो बोलते हैं ना, जो जुगाड़ जो कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और ये सब चीजें अपन पावर में देखते हैं। एक्सचेंज इज द यूज ऑफ पावर थ्रू इंसेंटिव्स। एक्सचेंज एक्सचेंज यानी क्या, कुछ तो भी आप जो जिसका आपका बिहेवियर आपको कंट्रोल करना है उसको कुछ तो भी देना, उसको कुछ तो भी, उसको क्या बोलते हैं अपन, लालच देना कि चल ये तू करेगा तो मैं तुमको ये दूंगा, और उसके कारण वो अनदर पर्सन एक्ट अकॉर्डिंग टू योर विश। तो फोर्स, परसुएशन, मैनिपुलेशन and exchange, all these things included in power concept. When we discuss about the power, always think that the person who is the powerful, he must have all these things, particularly force, persuasion, manipulation and exchange. There is no definite explanation of political power. Biological, psychological, cultural, rational and irrational explanation have been put forward. कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अपन दे नहीं सकते हैं, ये बात बराबर है, लेकिन इससे रिलेटेड आप ये जो बायोलॉजिकल बोलो, साइकोलॉजिकल बोलो, ये इससे यदि आप उससे कंपेयर करते जाओगे पावर का, तो आप डेफिनेटली यू कैन बेटरली अंडरस्टैंड अबाउट द पावर कंसेप्ट। एक्चुअली जो पावर की जो काइंड्स है वो कल अपन देखेंगे, क्योंकि मेन तो इंपॉर्टेंट है कि ये कंसेप्ट क्यों पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, क्योंकि अपना क्लास थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। Yesterday we discussed about the political science, meaning of political science and meaning of politics. What is political science? If we discuss about the governmental institution and process and whatever the decisions taken by that institutions, it is called political science. And what is politics? Means everyone wants to acquire particular thing. Everyone, even in group, अपन yesterday देखा है कि पॉलिटिक्स में हर एक पर्सन बोलो या ग्रुप बोलो, they want to acquire according whatever they wish. They want that the other institutions should behave according to their wish. ये जो है चीजें, ये अपने को पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ती है। इसलिए देखो ना, आप यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट में रहता है उसको अपोजिशन वाले बोलते रहते कि तुम ऐसा करो। जो गवर्नमेंट में रहता है उसको अपोजिशन वाले बोलते हैं हर वक्त कि आपने ये डिसीजन गलत लिया, आपने ये डिसीजन लेना चाहिए, आपने वो डिसीजन लेना चाहिए। तो ये जो चीज है आपको हर वक्त पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ेंगी, कोई भी रहे अपोजिशन में। ऐसा मेरा कहना नहीं है कि पर्टिकुलर, लेकिन कोई भी रहे तो आपको यही दिखाई पड़ेगा कि नहीं, अरे ये ऐसा है क्या, ये वैसा, इसने ऐसा डिसीजन लिया कि ये गलत है। तो ये चीजें आपको पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ेंगी। इसलिए जब पावर आप रिलेट करोगे इन दोनों से, तब दोनों का पावर का मीनिंग अलग निकलेगा। जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेट करोगे तो आपको कि
what kinds of power given by the constitution to that particular institution. ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा. अपन बहुत बार बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन प्रेसिडेंट. ये एग्जांपल आपको पता है, और यू नो दैट. Why we say that? Because our constitution gives more power to the prime minister rather than president. तो इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि, और मैं ये कंसेप्ट पावर, ये कंसेप्ट आप दिमाग में पूरी डाल दो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत बार आगे काम में आने वाली है. इसलिए पावर, जब आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करोगे, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया है ये आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप पावर कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाओगे. अपन बहुत बार ऐसे भी बोलते कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूएस जैसा सुप्रीम कोर्ट नहीं है. व्हाई वी से दैट? क्योंकि अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को शुड बिहेव वॉट एवर द लिमिट्स डिजाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अपने यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, इट शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द jurisdiction given by the our constitution. लेकिन यदि आप यूएस से बात करोगे तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड. दे हैव द पावर टू एक्सप्रेस एनीथिंग. इसलिए वहां का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस का. ये छोटा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ? वेरी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये छोटा क्यों है? बिकॉज ये जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिए गए हैं वो काफी बड़े हैं पावर से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, यूएस का सुप्रीम कोर्ट इज मोर पावरफुल देन इंडियन सुप्रीम कोर्ट. तो ये समझने के लिए अपने को सुप्रीम कोर्ट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करनी पड़ेगी, और फिर वहां का पावर का जो मीनिंग है वो निकालना पड़ेगा. बट व्हेन वी डिस्कस इन पॉलिटिक्स, वो फिर अपन अलग अपने एंगल से अपने को दिखने, कौन है अभी आज की तारीख में पावरफुल इंडिया में देखा जाए तो फिर पॉलिटिक्स में अपने को अमित शाह जी क्या नाम लिया जाता है, मोदी जी का नाम लिया जाता है. अपन महाराष्ट्र के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो शरद पवार जी का नाम लिया जाता है. These are all powerful person in the politics. Means they have the power to change the behavior of the people according to their wish. इन सब फिर यहाँ पे फिर आपको फिर ये जो मैंने बताया अभी, फोर्स बोलो, मैनिपुलेशन बोलो, परसुएशन बोलो, या एक्सचेंज बोलो, ये चारों भी थिंग आपको यहां पे दिखाई पड़ेंगी पॉलिटिक्स में, कि दे हैव द पावर. किसको क्या देना, उसके हिसाब से फिर उसको अपने हिसाब से बिहेव करने के लिए लगाना, मैनिपुलेट करना. देखो ना, जो युति करके जो लड़े थे, बाद में अलग होकर शरद पवार जी ने बराबर उसको मैनेज करके अपनी सरकार तैयार कर ली. यह है मैनिपुलेशन पावर. परसुएशन, यानी आप परसुएशन, आप देखो ना, मोदी जी की तरफ आपको दिखाई पड़ेगा. जब वो कहीं पे नहीं थे और जब वो नेशन के पॉलिटिक्स में आए तो कॉन्स्टेंटली सभी जगह जाके सवाल लेना, सबको संबोधित करना, और सबको अपने जो चीज है उनको जो लोगों की तरफ से करवाना था उन्होंने बराबर किया, और उसके लिए दिन रात एक करके उन्होंने काम किया. इवन बंगाल में अभी इलेक्शन में भले उनको कम सीट आई होंगी, लेकिन बंगाल में जो एग्जिस्टेंस ही नहीं था बीजेपी का, वो एग्जिस्टेंस क्रिएट हुआ, और उसके लिए अमित शाह जी ने जो कुछ काम किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोलते हैं इसको परसुएशन. और उसमें एक्सचेंज भी आता है, किसी को कुछ देना उसके अगेंस्ट में.
किसी को फोर्स के थ्रू भी कंट्रोल करना, क्योंकि ये जो भी पॉलिटिक्स में रहते हैं कहीं ना कहीं उनके पास पॉलिटिकल पावर रहता है, और जिनके पास नहीं रहता वो पीछे पड़ते हैं, और जिनके पास पॉलिटिकल पावर रहता है वो एक्वायर करते हैं देयर विश। इसलिए आपको ये पावर, ये कंसेप्ट समझ लेना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड जब मैं पावर का डिस्कशन करूंगा तब मेरा जो कुछ भी कहना है वो अलग रहेगा, जब मैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहूंगा तब वो कुछ अलग रहेगा। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं अपन। थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी के कारण थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम हुआ। अपन कल डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पावर पर। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कंसेप्ट उसकी बेस है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना है, उसके काइंड्स भी अच्छी तरह से समझना है, तो उसके कारण आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रात को मैं क्विज डालूंगा, वो क्विज सबको सॉल्व करना है, ठीक है? सर, हाँ, ते फॉर्म भरायचं होतं तर दोन्ही फॉर्म भरायचे की एकच भरायचे फॉर्म एक्झामचा? दोन्ही भरायचे का, म्हणजे मला कळलं नाही. नाही, तुम्ही दोन्ही पीडीएफ दिलेला आहे ना, तर दोन्ही फॉर्म भरायचे की एकच भरायचा आहे? कोणताही एक भरायचा. ठीक आहे. आणि सर ते समर एक्झाम टाकायचं आहे ना? हा, समरच टाकावं लागेल ना. आणि सर फीस कुठे भरायची आहे? हम्म, फीस फीज हा आपलं ऑनलाईन पेमेंट आहे ना बेटा, हो ऑनलाईन आहे. ऑनलाईन करा ना. तेच कशावर सर? ते एक लिंक दिलेली आहे ना त्याच्यात, अच्छा. ती जी ऍक्च्युली जे डायरेक्शन आले की नाही तुम्हाला, त्या डायरेक्शन हा मध्ये सगळ्या लिंक दिलेल्या आहेत. ठीक आहे त्या सर. त्या तुम्ही